शुरू मजबूरी में गए थे हाँ और हम मजाक में जाते हैं। जावा बिल्कुल नहीं आती है इसलिए यही पढ़ेंगे। एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज अ गुड टीचर लाइक आई डिड। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो, नहीं जी ऐसा करो। Hi everyone, welcome to this episode of CV Placement Talks. Today we have with us Gurdat. He's a final year student of BTech IT at Bharatiya Vidyapeeth College of Engineering. Recently he got placed at 1MG. In this episode of CV Placement Talks, we are going to discuss with him all about his programming journey, his placement at 1MG, and also his experience as a student of Coding Blocks. So let's get started. So welcome Gurdat to this episode of CB Placement Talks. Let me start off by congratulating you for getting placed at 1MG. Thank you, sir. You got this placement through your college, Bharatiya Vidyapeeth College of Engineering. Can you just walk us through what the placement process at 1MG was like? Placement से around 2 हफ्ते पहले they released the JD and which they say that we for an internship plus PPO offer and उसमें actually they mentioned that it will be a MERN position, MongoDB, Express, React and Node.js and a Python backend position. Mhm. So उसके around 2 weeks बाद they scheduled an online test for us. Like it was a 1.5 hour test from home at around 10 in the morning. So उसमें there were a lot of computer fundamentals के MCQs and since like they were also looking for a MERN position like a front end position, so there were a lot of HTML, CSS, and JavaScript questions. Like they would give you a like form दिया होगा and वो कहेंगे कि जब इस पे क्लिक करे तो फॉर्म में बट लाइक नंबर ऐड होके इट शुड फंक्शन लाइक अ कैलकुलेटर. उसके एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड इट टाइम क्रंच थोड़ा लगा था एंड क्योंकि इट वाज नॉट एट ऑल मेंट फॉर 1.5 hours. तो लाइक सो मैं लाइक थोड़ा मेरे को एप्टीट्यूड थोड़ा कर रखा था मैंने एंड डीएसए भी थोड़ा बहुत कर ही रहा था. तो आई डिड नॉट हैव टू स्पेंड मच टाइम थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस. And there were 2 DSA problems. They were not very hard. One was simply an array-based questions. उसमें बस आपको समझना था कि पूछा क्या है. Otherwise, it was pretty easy. And दूसरा भी it was a, if I'm not wrong, it was a problem related to longest common subsequence. Okay. Like it was pretty much that, maybe the slight tweak. So उसके बाद like also I should mention that this placement was only for CSIT branches, like not EC वगैरह. So उसमें there were around 200 people who gave it and interview के लिए around बस 20 shortlist हुए थे Okay. and it was immediately next day. So उसके बाद there were 20 people on and Tata Ware MG से there were 5 panelists Okay. and ऐसा कुछ पता नहीं था कि किसको कौन मिल जाएगा. तो बेसिकली चांस की जो इंटरव्यू पहले फ्री होगा आपको चला जाए तो आप आज जाएंगे. एंड ऐसा था कि कुछ लोगों से बहुत हैवी डीएसए पूछ रहे थे, मतलब ग्राफ्स क्वेश्चंस, लीड कोड हार्ड. एंड एक बंदे से मतलब उसके सामने कोड फोर्सेस खोल के मतलब पूछ लिया था. अच्छा, हाँ जी. लैपटॉप पे कोड फोर्सेस का हाँ जी. क्वेश्चन दे दिया करने के लिए. हाँ जी. एंड Okay. कुछ लोगों से तो जब मेरी इंटरव्यू तो पहले थी, वो शी वाज अ बिट लीनिएंट, तो मुझसे एसक्यूएल, नो एसक्यूएल बहुत क्वेश्चंस पूछे. रेज्यूमे हेवी इंटरव्यू मेरा बहुत था. Mhm. एंड उसके बाद वही कि डेटाबेस में एक 2-3 क्वेरीज पूछी थी एंड डेटाबेस एसिड प्रॉपर्टीज, बेस प्रॉपर्टीज ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेसेस. उसके बाद उन्होंने जावास्क्रिप्ट के थोड़ा आउटपुट क्वेश्चंस थे कि मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, या फिर इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस क्या है. आफ्टर दैट उन्होंने पहले तो लाइक एज अ फॉर्मेलिटी पूछा कि आपको डीएसए में कितना मतलब प्रोफिशिएंसी है. तो मैंने कहा कि मेरे को 3.54 आउट ऑफ 5 आती है. अच्छा. तो उन्होंने एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन दिया. इट वाज प्रीटी इजी. लाइक it was basically कि you have a linked list and there are some nodes which are repeating and you just have to remove the repeating nodes and it is ये लीड कोड का answered. क्वेश्चन है, रिमूविंग हाँ जी. डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिंक लिस्ट. ओके. तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको मतलब पेपर पे लिखना है, तो मैंने पूछा कि सूडो कोड लिखूं या पूरा कोड लिखूं, मेरी चॉइस है. मैंने कहा इंप्रेशन में आएगा तो मैंने पूरा C++ फंक्शन लिख दिया पूरा. अच्छा. एंड उसमें वही था कि मैंने अनऑर्डर्ड सेट ऑर्डर्ड सेट वाली अप्रोच बता दी एंड शी सीम सैटिस्फाइड विद इट. Mhm. एंड वन टिप आई वुड लाइक टू शेयर फॉर इंटरव्यूज इज कि इवन दो अगर वो आपसे ना पूछें, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी यू शुड डेफिनेटली आस्क कि अच्छा. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन. ओके. एंड आई वुड आस्क देम कि आप क्या काम करते हो, आप कितने टाइम से हो यहाँ पर, आप Mhm. क्या फीचर्स डेवलप कर रहे हो. Mhm. एंड तो ये आई थिंक वन मेरा एक माइंडसेट था कि आई हैव ट्रीटेड द इंटरव्यू लाइक अ कैजुअल, लाइक अ कॉन्वर्सेशन. आई डिडंट ट्रीट Okay. इट कि आप मेरा एग्जाम ले रहे हो. आई हम्म. ट्रीट करें आप, अच्छा आप क्या काम करते हो, अच्छा आप कौन से कॉलेज से हो, या आपकी पहली जॉब है.
सो आई थिंक वो भी थोड़ा मेरे को वापस पूछते थे, तो आई थिंक इससे थोड़ा इनफॉर्मल एंड बिकॉज़ आई वाज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दिस रोल एंड फॉर लाइक द स्टार्ट लाइक 6 साल 8 महीने पहले से आई न्यू कि भाई मेरा 1 एमजी में आई वांट टू गो देयर। सो आई वाज़ अच्छा। जेन्युइनली इंटरेस्टेड सो तो आई ये पता था कि 1 mg प्लेसमेंट्स के लिए आएगी, मतलब 6-8 महीने पहले, या सीनियर्स ने बताया था आपको? एक्चुअली पिछले साल आई थी ओह! एंड लाइक हमारे एक सीनियर जिनसे मैं लाइक काफ़ी टच में हूँ लाइक वो वहाँ गए थे एंड इट वाज़ वन ऑफ द ओनली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ दैट कम्स टू आवर कॉलेज ओके। एंड दे गिव लाइक अ डिसेंट पैकेज लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के लेवल का। एंड सो उसके बाद हमारे कॉलेज में प्री प्लेसमेंट बूट कैंप हुआ था हुँ, हुँ। एंड तो वहाँ सब लोग आ रहे थे। तो वाईएमजी से हमारे कॉलेज के 2 सीनियर्स आए थे एंड लाइक उन्होंने बताया था कि मतलब मोहन ये ऐसा है एंड डीएसए अच्छे से पढ़ लेना। तो मैंने उनसे इंटरव्यू के लाइक प्लेस प्रेजेंटेशन के बाद भी थोड़ी बात की थी कैसा कल्चर है, तो वहाँ कल्चर बहुत अच्छा लगा। लाइक अच्छा। अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, तो इट इज़ हाइब्रिड लाइक बेस्ट ऑफ ऑल एंड अदरवाइज़ द सीनियर्स एंड ऑल आर वेरी चिल लाइक माय मेंटर इज़ लाइक बहुत हेल्पफुल हैं, टीम में बहुत अप्रोचेबल हैं। ओके। सो आई न्यू कि भाई मुझे एंड उस टाइम पे आई न्यू कि भाई यहाँ जाना है मुझे। हुँ। तो उसके बाद ये जो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस है, इट टूक लाइक अ होल डे लाइक मैं सुबह 9 बजे आया था एंड आई लेफ्ट एट 9:30 ओके। रात के। सो ये कितने राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के? एक्चुअली इट वाज़ अ बिट लाइक थोड़ा मतलब वो अलग था कि मैं और एक और चारों में से मैं और एक और लड़का था। लाइक हमारा डीएसए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना बाकी 2 लोगों का था। लाइक वो कोड फोर्सेस लाइक दे हैव डन 1000 क्वेश्चन्स ऑन लीड कोड। सो हमें समवॉट लग रहा था कि यहाँ तक आए तो अगर होगा तो मोस्टली फ्रंट एंड पोज़ीशन के लिए होगा। क्योंकि हुँ। बैक एंड के लिए थोड़ा उनको लगता है कि डीएसए आता है तो हम बैक एंड सिखा देंगे इसे। ओके। एंड हमने प्रोजेक्ट्स बना रखे थे, हमने इंटर्नशिप कर रखी थी। हुँ, हुँ। तो फिर उसका और मेरा एक सरप्राइज़ थर्ड मैनेजरियल राउंड भी हुआ था। अच्छा। उसमें तो मतलब 2 टेक्निकल राउंड थे एंड फिर हाँ जी। मैनेजरियल राउंड। तो ओके। सेकंड राउंड बेसिकली ये था, उसमें भी ये था कि इफ यू आर लकी तो आपको मतलब फ्रंट एंड पोज़ीशन के लिए मिल जाएगा, इफ यू आर मतलब डीएसए तो वो डीएसए वाला मिल जाएगा। हुँ। तो और उसमें लीड कोड हार्ड के क्वेश्चंस पेपर पे लिखवा रहे थे पूरा कोड, ओके। लाइक स्टार्ट टू एंड और जावा में तो मतलब हो गए। अच्छा। तो फिर उसमें वही था कि मुझे उन्होंने रिज़्यूमे देखा और लाइक मेरे प्रोजेक्ट्स लाइव खोल के देखे कि ये फीचर आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया, तो मैंने बताया अच्छे से एंड उसके बाद अ फ्रंट एंड था तो थोड़ा मशीन कोडिंग राउंड था, उसमें इतना कुछ ख़ास नहीं था मतलब अगर आपको मतलब बेसिकली अगर आपको रिएक्ट करते हुए 1 हफ़्ता भी हुआ है, तो आप वो आंसर कर पाते हैं मतलब थोड़ा सोच हुँ। के कि अच्छा इसको ऐसे करना है, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स अगर काफ़ी फ़ैमिलियर हो, तो इट वाज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट ओके। एंड वहीं पे मैं उनसे आई वुड टॉक टू देम कि आप क्या काम करते हो एंड लाइक ये वो एंड आई थिंक मेरे बेसिक्स बहुत क्लियर थे एंड लाइक आई हैड द जेन्युइन इंटरेस्ट इन लाइक फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट तो आई वाज़ एबल टू आंसर दोज़ क्वेश्चंस। तो इन द थर्ड मैनेजरियल राउंड उसमें उन्होंने मतलब दैट वाज़ नॉट रिलेटेड टू कोडिंग और एनीथिंग उसमें वो थोड़ा-सा आई वुड से इट वाज़ नॉट रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट इट वाज़ रिलेटेड टू कि मतलब लाइक डीएनएस लुकअप्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। ये पूछ रहे थे कि एज रन टाइम्स क्या होता है कि जब आप वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं जैसे कि अगर एक सर्वर पे 2 एप्लीकेशंस चल रही है, एक मेरी और आपकी और अगर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डालूँ तो हाउ डज़ द डीएनएस नो कि इस वेबसाइट का खोलना है और आपका नहीं खोलना। तो ऑनेस्टली दैट राउंड डिडन्ट गो वेरी वेल एंड उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा हिल गया था। अच्छा। बट एंड में फिर वही हुआ मतलब आ गया फिर सिलेक्शन कि आप चारों का हो गया एंड अच्छा, तो 100 लोगों ने स्टार्टिंग में फिल करा था, हाँ जी, 20 वर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यूज़ और फिर 4 लोग सिलेक्ट हुए थे आपके हाँ जी। कॉलेज से। ओके, तो अचीवमेंट है यार अपने आप में बहुत बड़ी। एंड आपने जो ये पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस एक्सप्लेन करा है, तो मुझे जो समझ आया कि यार ये तो सब कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, आपके जो स्टार्टिंग में टेस्ट करवाया था उसमें सीएस फंडामेंटल्स पूछे गए थे, डेवलपमेंट पूछा गया था, हाँ जी, डीएसए पूछा गया था, और फिर जब आपके इंटरव्यूज हुए कॉलेज में तो वहां पर भी एग्जैक्टली सेम थीम फॉलो हो रही थी, डीएसए पूछ रहे थे, डेव पूछ रहे थे, मशीन कोडिंग राउंड भी आपका हुआ। हाँ जी, ओके, तो मतलब ये जो प्रिपरेशन चाहिए होती है किसी अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, इसमें मेहनत लगती है। हाँ जी। आपको कितना टाइम लगा कि नाउ यू कैन से कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, थोड़ा काम फील कर रहा हूँ कि मैं ये क्रैक कर सकता हूँ? लाइक मैंने सेकंड सेमेस्टर में आपका डीएसए का कोर्स लिया था एंड मैंने लाइक आपकी एडवाइस लेके मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे लाइक लिंक लिस्ट के लाइक यूजिंग 2-3 कलर के पेन जो मैंने आज तक स्कूल में भी नहीं करे मैंने अच्छे से बनाए थे अच्छा। एंड अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं वो नोट्स। तो उनसे मेरे को था कि यार चलो मतलब अगर लाइक मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स अगर आएँगे तो मैं ईज़िली मतलब आई कैन स्टडी एंड आई कैन डू देम। अगर कोई ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी प्रॉब्लम आ गई फिर वो तो मतलब वही है कि आप लीड कोड पे करोगे आपको वैसी प्रॉब्लम दिखेगी तो आप समझोगे कि अच्छा ये तो ऐसे था। उसके बाद
अराउंड आई थिंक थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स के अगले दिन ही लाइक मुझे मतलब एज बहुत नेचुरल है कि थोड़ा मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि यार बाकी लोग इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, मैं डीएसए कर रहा हूँ, उसमें भी मतलब आई कैन नॉट से आई एम एक्ट लाइक एन एब्सोल्युटली अमेजिंग एट डीएसए। एंड मुझे तो मैंने कहा कि फ्रंट एंड ट्राई करते हैं थोड़ा, मतलब ओरिजिनली मेरा प्लान नहीं था। आई वाज लाइक कि वेब डेवलपमेंट मतलब मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी थी, आई वांटेड टू गो इन एंड्रॉयड, लेकिन मैंने वेब डेवलपमेंट ट्राई की, आई रियली लाइक्ड इट। एंड मेरा ये था कि मैं घुस के करने लग गया, आई वाज लाइक इनटू इट कि मैं मतलब अ, एक मैंने आई डिडंट हैव रियली मतलब मैं ऐसे कुछ खास घूमने नहीं जाता था। लाइक मेरे दोस्त थे, आई वुड मीट देम इन कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेज के बाद थोड़ा हैंग आउट कर लिया, बट आई वाज़ प्रीटी फोकस्ड। एंड मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग से ही था कि मतलब लाइक मेरे सीनियर्स थे या जो आउटसाइड कॉलेज की, आपको ऑफ कैंपस करना पड़ेगा। मतलब ऑफ कैंपस लेके चलो कि प्लेस ऑन कैंपस बहुत बार नहीं लगती। हम्म। तो मैं बहुत फोकस था, लाइक आई थिंक 4th, 5th एंड आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ 6th सेमेस्टर तक मैंने बहुत भयंकर वेब डेवलपमेंट करी। आई वाज़ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस 1-2 अटेंड की मैंने। लाइक वहाँ थोड़े मतलब लोगों से मिले एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला, जो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे नहीं पता। ओके। लाइक कुबरनेटिस, डॉकर, ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने देखा कि चलो अच्छा ये होता है, एटलीस्ट नाम पता चल गया कि ये चीज़ होती है कुछ। तो ये कॉन्फ्रेंसेस एग्जैक्टली क्या थी, मतलब इनका अ, नाम अगर आप बता सको। एक थी लाइक एक ओपन कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स है, लाइक वन हमारे कॉलेज के एक सीनियर है, ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। ओके। एंड तो उन्होंने एक रखवाई थी, तो इट वाज़ इन आई थिंक नोएडा, आई थिंक 2023। तो उसमें वही थे, एक आई थी उन्होंने कुबरनेटिस पे टॉक दी थी, एक थे वो वही रिएक्ट एंड वो सब पे थी, एंड एक थोड़ा आई थिंक डेवऑप्स रिलेटेड थोड़ी सी। हम्म। एंड द सेकंड वन व्हिच आई अटेंडेड इन 23 एंड जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला कि इट वाज़ सिटी.जेएस। ओके। सो ये मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उस टाइम में दिल्ली में हो रही थी। एंड तो मैं गया एंड इट वाज़ वेरी नाइस। मतलब वहाँ आपको एक बहुत अच्छी टॉक्स थी। एक थी कि आप रिएक्ट ऐप्स कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, डेटा फेचिंग इन नेक्स्ट.जेएस। एक आई थिंक एक टैन स्टैक क्वेरी, मतलब टैन स्टैक बहुत चल रहा है वेब डेवलपमेंट में। इट्स लाइक अ बेसिकली a very optimized way of like fetching data and like routing adding routes to your application। वो था। एक था कि एक it was about कि जैसे कि TensorFlow JS is a JavaScript library जिससे machine learning models है, using JavaScript you can interact with them। एक था कि एक Vonage नाम की कंपनी थी, they are like communication APIs, so they were basically working on some 3D rendering using JavaScript। एंड तो भाई इन सब को मैंने मतलब आई जस्ट नोटेड डाउन कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, मैं खुद टाइम पे एक्सप्लोर करूँगा। एंड एक्चुअली वहाँ पर मुझे टाटा वन एमजी से भी दिखे थे कोई। ओके। सो दे वर बेसिकली उनके ऐप में मतलब आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन लेरी इट्स एन इंटरनल सी लाइक थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंशियल है, बट इट वाज लाइक अ वेरी न्यू वे ऑफ लाइक ऑप्टिमाइजिंग कि आपको मतलब यूजर जब आपने ऐप पे स्क्रॉल करे, इट शुड फील ऑलमोस्ट इंस्टेंट। हम्म। So I was very intrigued by that and I mentioned this part during my interview। तो उससे आई थिंक थोड़ा उनको लग गया कि यार ये मतलब बंदा मतलब इंटरेस्टेड है। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस आपने बताया अटेंड कर रहे थे, हाँ जी। रैंडमली यहाँ जा रहे थे या फिर गूगल में प्रॉपर सर्च करा था कि भाई यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो रजिस्टर करते हैं, या कहीं और हो रही है रजिस्टर करते हैं? अब जब सीनियर थे जिन्होंने बताया था, ही वुड ऑफन पोस्ट लाइक हमारे ही वाज इन द सेम कॉलेज चैप्टर में, सोसाइटी में थे हम, तो वहाँ कभी-कभी पोस्ट करते थे कि कॉन्फ्रेंस हो रही है। एंड ट्विटर आई वाज लाइक स्टार्टेड यूजिंग इन लाइक मिड 2023 कि बोला था कि ट्विटर यूज़ करो मतलब बहुत पता चलेगा। तो हम्म। वहाँ से भी मुझे पता चला। तो उसके बाद रिसर्च जब होता है कॉन्फ्रेंस की कौन-कौन आ रहा है, उनकी क्या टॉक्स होने वाली हैं। तो उससे मैं गया था, तो आई वाज लाइक एक्चुअली सीरियस कि भाई मुझे सीखने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। ओके। ओके। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बताई, क्योंकि मोस्टली लोग या स्टूडेंट्स जब वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, मे बी दे गेट इनटू एंड्रॉइड एंड सो ऑन, दे रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू जस्ट कोर्सेज कि भाई कोर्स कर लिया, पर्सनल प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर लिया एंड दैट्स इट। बट आप उससे भी एक स्टेप बियॉन्ड गए, आपने कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, कॉन्फ्रेंसेस में आप गए, वहाँ सीखने को मिली चीज़ें आपको, एंड देन जैसा आप बता रहे हो कि इंटरव्यू में कैसे वो आपके काम भी आ गई हाँ चीज़, जी। विच इज़ वेरी गुड। ओके। आपने मेंशन करा था कि यू आल्सो डिड अ इंटर्नशिप, यू हाँ डिड जी। अ रिमोट इंटर्नशिप एट अ स्टार्टअप आई थिंक। यस। व्हाट वाज दैट स्टार्टअप और कैसे मिली वो इंटर्नशिप आपको? It was a startup, like it was a pretty new age startup from Bangalore, and their work was mainly in recruiting candidates. For example, if you have a company and आपने एक job post निकाली की, या फिर आपके पास एक पोजीशन है फॉर एग्जांपल SD1 की, सो आपके पास मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी, बहुत उनमें से क्वालिफाइड नहीं होंगे। सो यू वुड आपको मतलब
आपका पसीना निकल जाएंगे, आप पार्स करते रहोगे कि अच्छा ये इसका लाइक इसका रेज्यूमे रेलेवेंट नहीं है, रिजेक्ट करो। ओके So what this company did was इनके basically दो like two aspects थे। One was कि इनका एक रेज्यूमे बिल्डर सर्विस थी। उसमें बेसिकली एआई इंटीग्रेटेड था, एटीएस था। तो उसमें मतलब एंड इट वाज बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप कि आप ये फील्ड सेलेक्ट करी, आप मतलब अपनी फील्ड्स टाइप कर दो। इट वुड गेट सब सजेशंस लाइक मल्टी स्टेप फॉर्म था एंड उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यू कैन रीअरेंज। तो इट वाज लाइक अ वेरी नाइस सर्विस। एंड दूसरा इनका था जैसे कि वो हायरिंग का होता है, तो दे इनका अपना प्लेटफॉर्म था वेयर दे वुड पे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स कि आप इन बंदों का इंटरव्यू लो एंड वी वुड लाइक फॉर एग्जांपल पे यू फॉर द इंटरव्यू। ओके सो मुझे एक्चुअली लिंक्डइन पे आई वाज स्क्रॉलिंग, तो इनके एक फ्रंट एंड डेवलपर का पोस्ट आता कि वी आर हायरिंग अ रिएक्ट इंजीनियर इंटर्न। तो मैंने जैसे कि बहुत सारे लोगों ने तो इंटरेस्टेड वगैरह कमेंट किया हुआ था। मुझे पता था कि मैं अगर इंटरेस्टेड कमेंट करूंगा तो नहीं मिलने वाली मेरे को। बहुत इतने हजार लोगों ने किए हुए, वो क्यों देखेगा मेरी प्रोफाइल। तो मैंने बस उनको उनको और उनके दो को फाउंडर्स है उनको मैंने ऐसे लिंक्डइन डीएम ड्रॉप कर दिया कि आई एम गुरदीप, मैं फॉर एग्जांपल रिएक्ट नेक्स्ट जेएस पे काम करता हूँ, अगर आपको मेरी प्रोफाइल अच्छी लग रही है तो आई कैन सेंड यू माई रेज्यूमे। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि आपका गिटहब मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे आई वाज प्रीटी एक्टिव एंड मेरे को ये था कि आई लाइक टू लाइक मतलब प्लगइन्स डाल के आई वांटेड टू मेक माय गिटहब रीडमी लुक वेरी नाइस। क्योंकि Okay. प्रोफाइल आप खोलते हो सबसे पहले आपको वही दिखता है। तो मेरे को ये था कि मेरे को ये एनिमेशंस डालने हैं, ये स्टिकर्स डालने हैं, ये सारा प्री जनरेटेड था, मैंने मेहनत नहीं की थी। तो उससे इंटरव्यू हुआ, उससे एंड आई वाज इन द मिडल ऑफ गिविंग माय एंड सेम्स लाइक 5th सेमेस्टर के एंड सेम्स। Okay. सो उसी में बीच में हो गया लाइक उन्होंने एक दिन इंटरव्यू लिया फ्रंट एंड डेवलपर के साथ, उन्होंने मशीन कोडिंग पूछी, थोड़ा मतलब पूछा कि प्रोजेक्ट्स बारे में। तो मशीन कोडिंग में मतलब इट वेंट फाइन, तो मुझे उनका आई थिंक अगले दिन ईमेल आ गया था कि इट वेंट वेल एंड हम आपकी अपने टेक लीड है उनके साथ एक कॉल शेड्यूल कर रहे हैं। तो वो भी हुई। इट वाज मोस्टली हम एचआर राउंड, तो उसमें मतलब थोड़ा पूछ रहे थे कि आप मतलब फॉर एग्जांपल मैं उन्होंने हॉबीज पूछी, तो मैंने कहा कि मैं टेक आर्टिकल्स थोड़े पढ़ता हूँ। Okay. तो उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा आपने कोई रिसेंटली आर्टिकल भेजा हो तो उसका मुझे मीट में लिंक भेजो ताकि कि चेक करूँगा ये झूठ तो नहीं बोल रहा। एंड मैं रैंडम लाइक बाय चांस मैं इंटरव्यू से पहले ही वो आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मैंने भेज दिया। Okay. तो ही सीम्ड इम्प्रेस्ड। तो उसके बाद आई थिंक उन्होंने हाँ, एक चीज़ मेरे को कही थी कि हमें एक इमीडिएट जॉइनिंग चाहिए। मतलब आप हम चाहें अगर आप चाहो तो कल भी शुरू कर सकते हो। बट आई वाज़ लाइक कि सर मेरे तो एंड सेम्स है, मैं तो उसे नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 4 लाइक 2-3 दिन दे देते हैं। उस तो मैंने पूछा कि मुझे एंड से भी ब्रेक चाहिए होगा, फिर हम वो भी दे देंगे आपको। तो फिर आई थिंक 3-4 डेज़ बाद मेरे शुरू हो गई थी एंड आई 2 दिन काम किया था मैंने, बट फिर एक वीकेंड आ गया था एंड आई हैड 3 एग्ज़ाम्स इन 1 वीक। तो मैंने वो 1 वीक की ब्रेक ले ली थी एंड उसके बाद काम शुरू हो गया था ये वापस। कितने टाइम इस स्टार्टअप के साथ आपने वर्क करा? 3 मंथ्स। ओके एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट स्टार्टअप? इट वाज़ हायर स्नैप। हायर स्नैप। ओके अच्छा एक बहुत ही ना कॉमन क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट्स के पास कि उन लोगों ने कोई स्किल सीख ली, जैसे आपने वेब सीखा, प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर लिए, नाउ दे वांट इंटर्नशिप्स एंड सब लोग मुझे आके कहते हैं कि यार हम अप्लाई तो कर रहे हैं बट रिप्लाई नहीं आता। हाँ जी। तो हायर स्नैप के साथ जो तुमने काम करा, क्या वो पहला था जिसके लिए अप्लाई करा या फिर और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपने फिल करी थी बट दे वर द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड टू यू? आई थिंक ऐसा हुआ था कि मैं जब रिएक्ट सीख रहा था, आई स्टार्टेड मतलब पैसिवली अप्लाइंग कि मतलब कोई आ रही है अप्लाई कर दो, मिली ना मिली नहीं, आई डोंट केयर। लिंक्डइन से ही कर रहे थे? लिंक्डइन एंड थोड़ा वेल फाउंडेड इंटर्न वाला भी ट्राई किया बट नेवर रियली हैड एनी लक ऑन देम। सो मैं करता रहा, तो फिर या तो लाइक अगर 10 में अप्लाई करता था तो 2 से आता था रिजेक्शन का, बाकी 8 रिप्लाई नहीं करते थे। एंड उस टाइम पे मेरे को इतना नहीं था, लेकिन अगर वो सीख रहा हूँ, अब नहीं आ रहा रिप्लाई तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने करा एंड वन थिंग आई रियलाइज कि ऑफ कैंपस में नेटवर्क इज एवरीथिंग। मतलब इनमें मतलब जैसे कि मैं naukri.com पे भी देख रहा था, लाइक मुझे मेरे 8 सेमेस्टर के लिए इंटर्नशिप चाहिए थी बिकॉज मेजर प्रोजेक्ट करना पड़ता एंड आई वाज लाइक नॉट अप फॉर इट। तो आई स्टार्टेड वेरी अग्रेसिवली अप्लाइंग। उसमें वही होता था कि 2 घंटे पहले ओपनिंग आई, देयर आर 1000 एप्लीकेंट्स। सो आई थिंक इसमें नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप कॉलेज में अपने लाइक माइंडेड लोग ढूंढिए एंड आप जैसे कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, लोगों से मिलो। आई विश आई हैड डन मोर ऑफ दैट, तो मुझे मे बी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई होती, बट आई वुड डेफिनिटली मतलब वही कि नेटवर्क विद मोर पीपल ओके एंड वही कोल्ड डीएम एंड कोल्ड ईमेलिंग मे वर्क, बट इट इज़ लाइक एन
50-50 आई वुड आपके से। केस में वर्क कर गया? हाँ, मेरे केस में वर्क करेगा। मैंने बहुत कई बार जो रिप्लाई भी नहीं किया उन्होंने। ओके, ठीक तो है। वही है। व्हाट अबाउट ओपन सोर्स? उसमें क्या कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह करा या नहीं? ओपन सोर्स लोग बहुत कहते थे एंड देयर वाज़ अ लाइक जीसॉक होता है तो उसका एक काइंड ऑफ इंडियनाइज्ड वर्जन है। आई डोंट नो इफ आई कैन नेम इट बट आई थिंक पीपल वुड अंडरस्टैंड। उसमें वही था ओपन सोर्स बट आई थिंक द मेन ओपन सोर्स की ये इमेज ऐसे बहुत हो गई है कि एवरीबॉडी सेइंग कि ओपन सोर्स कर लो, जॉब लग जाएगी, गिफ्ट्स लग जाएंगे। हुँ, बट मुझसे होता नहीं था मतलब मे बी आई डिडंट मुझे वो मोटिवेशन ज़्यादा अपील नहीं करी कि ऐसा तो भाई बहुत फार फेच्ड है कि जॉब लग जाएगी। एंड उस प्रोग्राम में वही था कि मतलब एवरीबॉडी इज़ द क्राउडिंग द गिटहब इश्यूज़ तो उसमें भी अटेंशन नहीं मिलता था। मेंटेनर्स वुड जस्ट लाइक डिसर्ट द प्रोजेक्ट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ओपन सोर्स अगर आप कर रहे हो तो योर माइंडसेट शुड बी कि मैं अपनी लर्निंग के लिए करूँ एंड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। अगर आप ये कर रहे हो कि मुझे जॉब लग जाएगी, वो बहुत मुश्किल है। एंड वो भी अगर आपने बहुत मतलब अच्छी एक्टिव रेपो में बहुत बड़ा कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया हो, तो चांस है। तो अगर हुँ, आप इससे लिए ओपन सोर्स में जा रहे हो कि जॉब लग जाएगी, गिफ्ट टी-शर्ट वी-शर्ट मिल जाएगी, यू आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड एंड फिर ओके, आप छोड़ दोगे। ओपन सोर्स डू इट फॉर द लव ऑफ कोडिंग एंड ऑल। ओके, ठीक है। आपने एक चीज़ बोली थी अभी कि जब कॉन्फ्रेंसेस में गए थे तो काफ़ी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको पता चला एंड ऑफ कोर्स एआई हम लोग काफ़ी सुन रहे हैं आजकल। हाँ जी। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में एआई इज़ गोइंग टू रिप्लेस प्रोग्रामर्स, है ना? आई एम प्रिटी श्योर आपने 2 ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए काम कर लिया है। अपने वर्कफ्लो में ज़रूर डिफरेंट एआई टूल्स को इंटीग्रेट करा होगा। तो आपके ओपिनियन में आने वाले टाइम में डेवलपर्स जॉब्स को कैसे चेंज करने वाला है ये जो एआई वाली चीज़ हम देख रहे हैं इसमें? आई थिंक मैं तो अभी जूनियर डेव हूँ तो आई थिंक मुझे आई थिंक इट्स लाइक अगर आप एक जूनियर डेव हो तो आपको मतलब या फिर आप इंटर्न भी हो तो यू शुड नॉट जस्ट थिंक कि भाई मैंने रिएक्ट से पेज बना दिया तो आई एम डन। लाइक आपके अंदर एक तो लाइक वन थिंग क्यूरियोसिटी इज़ वेरी नेसेसरी कि अगर आपको को मतलब लाइक अगर आपका मेरा फ्रंट एंड का काम है लेकिन मेरे को है कि भाई माइक्रो सर्विसेज कैसे काम करती हैं, तो उसमें आपको पढ़ना चाहिए क्यूरियोसिटी एंड यू हैव टू इंटीग्रेट एआई इनटू योर वर्कफ्लो कि आप मेनियल टास्क को कर सको ऑटोमेट लाइक वी0 एंड चैट जीपीटी। कि मुझे लगता है कि जो लोग एआई को इफेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं लाइक एआई इज़ बेसिकली एक एन इंटर्न आपने अपना इंटर्न रख लिया, वो उनको रिप्लेस कर पाएँगे जो मतलब नहीं यूज़ कर रहे आउट ऑफ लाइक स्टबर्ननेस या पता नहीं है। तो वही है आई थिंक यू हैव टू इंटीग्रेट इट इनटू योर वर्कफ्लो। ओके, ओके, परफेक्ट। अ, कोई भी स्टूडेंट जो प्रोग्रामिंग शुरू करता है, फर्स्ट थिंग दे लर्न इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आपने सेम चीज़ करी, यू जॉइन्ड माय कोर्स हियर एट कोडिंग ब्लॉक्स। फिर आपने इनफैक्ट कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग वाला कोर्स भी हमारे साथ करा था। अब आपने आई थिंक 2 साल से डेवलपमेंट कर चुके हो। हाँ जी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे हैं, स्टार्टअप के लिए काम करा है, 1mg के लिए भी आप काम कर रहे हो। आपके ओपिनियन में जो वो फाउंडेशनल नॉलेज होती है डेटा स्ट्रक्चर की, एल्गोरिथम्स की, टाइम एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, क्या वो रियल वर्ल्ड जो आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करती है? Indirectly, it definitely helps because I think मैं डीएसए को आई व्यू इट एज सॉल्विंग पजल्स एंड सो हम्म, इट आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करता है एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इट डेफिनेटली हेल्प्स बिकॉज आपको मतलब समवॉट थोड़ी हैबिट पड़ जाएगी कि मैं थोड़ा मतलब मेमोरी एंड टाइम एफिशिएंट कोड थोड़ा लिखूं बिकॉज जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ अगर 100 मिलीसेकंड्स का भी डिले है इट्स लाइक अ बिग थिंग लाइक वो थोड़ा मतलब यूआई को जारिंग लगेगा। तो उससे आई थिंक इट कैन एंड वही इट कैन हेल्प यू कम अप विद क्रिएटिव सॉल्यूशंस एंड वही आई थिंक डीएसए इज लाइक इम्पोर्टेंट लाइक तो थोड़ा आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व सिर्फ हायरिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रियल वर्ल्ड जो आप चीजें कर रहे हो वहां पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यस मे बी नॉट आपको मतलब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली ना दिखे बट आई बिलीव कि डेफिनेटली इट हैज लाइक आपको यू विल स्टार्ट टू फील कि मैं डीएसए सॉल्व करने से जो मेंटल लाइक एक माइंडसेट बनता है वो डेफिनेटली आपके जॉब में बाहर आएगा एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन ये था कि आपकी जो इंटर्नशिप थी हाँ हायर जी। स्नैप पे, इट वाज रिमोट इंटर्नशिप, हाँ जी। घर से काम कर रहे थे। अभी 1mg पे आई थिंक हाइब्रिड मोड में आप वर्क कर रहे हो, तो कुछ दिन ऑफिस जाते हो, कुछ दिन घर से काम करते हो। आपको क्या पसंद है इन दोनों में से, प्योरली रिमोट या फिर ऑन साइट, या लर्निंग कहाँ पर ज्यादा होती है आपके हिसाब से? हैविंग वर्कड इन बोथ प्लेसेस आई वुड से लाइक मुझे ऑफिस जाना ज़्यादा पसंद है हम्म, लाइक एटलीस्ट अ कपल ऑफ डेज अ वीक बट लाइक डिस्टेंस असाइड या कम्यूट असाइड आई थिंक आप जब जाओगे तो आप
लाइक ऑनलाइन में ये होता है कि अगर मैं आपको एक टेक्स्ट भेजूँ, तो फिर मैं किस सेंटिमेंट में आपको भेज रहा हूँ, वो आपको इमीडिएटली शायद क्लियर ना हो। एंड इससे बहुत मिसकम्युनिकेशन होता है। एंड आप लाइक स्लैक पे अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपको डाउट है, अपने सीनियर को पिंग करोगे कि मुझे ये डाउट है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? बट इन माय जॉब माय सीनियर लाइक मेंटर है ही मेरे बगल में बैठते हैं, तो मेरे को कुछ डाउट है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता हूँ, या टीम में किसी और से पूछ सकता हूँ। एंड थोड़ा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, आप बात करोगे लोगों से। तो मुझे वो रिमोट में थोड़ा मतलब उतना मतलब आई वुड से कि नहीं मिला। ओके। एंड लाइक वो उनकी टीम मीटिंग्स होती थी, दे वुड गो फॉर फन फ्राइडेज टू अ कैफे एंड आई वाज लाइक सिटिंग एट होम कि भाई मैं तो मतलब तो टीम बॉन्डिंग का कोई स्कोप ही नहीं है रिमोट हाँ। जॉब में। ओके। ठीक है। एक चीज़ और मेरे को पूछनी है आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, मे बी इन कपल ऑफ मंथ्स या कुछ महीनों बाद, दे विल अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स, दे विल अप्लाई फॉर फुल टाइम जॉब्स। आप काफ़ी टाइम से वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, इंटर्नशिप्स कर चुके हो, प्लेस हो चुके हो एट 1mg। अगर आपके पास उनके लिए कोई एडवाइस हो, कोई मैसेज हो कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है कि उनके जो चांसेस हैं टू गेट प्लेस एट अ गुड कंपनी वो इंक्रीज हो जाए, लाइक व्हाट इज एन आइडियल रोड मैप फॉर देम, क्या होना चाहिए? वन थिंग लाइक जो बिगेस्ट थिंग जो मैं भी कुछ महीनों से रियलाइज कर रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्यूरियस। मतलब आपको मतलब कोई नई कोई टर्म पढ़ रहे हो, आपको होना चाहिए यार ये क्या होता है? क्योंकि अगर आप नॉट नोइंग समथिंग इज़ फाइन, बट अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता, या फिर आप कोई टर्म पढ़ी, आप भूल गए उसके बारे में, दैट इज़ वेरी बैड। हम्म। मतलब थोड़ा पढ़ो, मतलब आपको बेसिकली ऊपर की एक लेयर समझ आता है, एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आपको मतलब समझ आ जाए, तो उससे आपको क्यूरियोसिटी रहेगी। एंड दूसरा मे बी ट्राई टू फाइंड लाइक अगर आप कोई चीज़ बिल्कुल सिर्फ जॉब के लिए कर रहे हो, तो मे बी ट्राई टू फाइंड अ डीपर रीजन टू डू इट। लाइक मुझे कोडिंग पसंद थी बिकॉज आई लाइक क्रिएटिंग स्टफ, डीएसए मुझे इसलिए पसंद था बिकॉज आई लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एंड इस कंपनी में भी सिंस इट्स लाइक अ वेरी इंजीनियरिंग हैवी टीम, इट्स नॉट लाइक आई एम वेरी पर्टिकुलरली एम्बिशियस अबाउट फार्मास्यूटिकल्स और एनीथिंग। इनकी इंजीनियरिंग हैवी टीम है, मुझे इन जैसे लोगों के साथ काम करना है ताकि मैं मतलब नई चीज़ें सीख सकूँ। आई वांट टू बिल्ड कूल स्टफ। एंड वही कि लाइक मैं डीएसए से रिलेटेड आई थिंक बहुत लोगों का रहता है कि डीएसए करनी चाहिए, डेव करनी चाहिए। आई थिंक जो आइडियल आपको चीज़ करनी चाहिए कि अगर आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हो, स्पेंड 6 मंथ्स एंड अच्छे से डीएसए कर डालो एक बार। अच्छे से नोट्स बनाओ, लाइक सॉल्व लाइक 200-300 प्रॉब्लम्स जो भी आजकल स्टैंडर्ड चल रहा है। एंड उसमें क्योंकि ऐसा है कि डीएसए में देयर इज़ नॉट एनीथिंग न्यू टू लर्न। वो एक आपने अच्छे से कर लिया, आप एक बार लाइक यू कैन ट्रीट एज़ अ सेकेंडरी थिंग कि अब मेरा डीएसए अच्छे से हो चुका है, आई जस्ट नीड टू प्रैक्टिस लाइक 1 और 2 प्रॉब्लम्स एवरी डे। एंड उससे मेरा डीएसए इन चेक रहेगा। लाइक वो प्रॉब्लम ऑफ द डे हो गया, कॉन्टेस्ट दे सकते हो, मैंने नहीं दिए। लाइक मेरे को अंडर कॉन्फिडेंस था, सुबह 8 बजे होता है, तो मैंने कहा इतनी जल्दी कौन उठेगा? तो वही है। एंड लाइक वही मतलब लाइक ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ लाइक पीपल, लाइक मुझे मुश्किल से 1-2 लोग मिले थे। एंड लाइक अब 6-7 सेम में आई फाउंड मोर पीपल लाइक जो एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं बहुत। सो उनके साथ कनेक्ट किया एंड आइडिया भी लगता है कि यार ये मतलब इतनी एडवांस चीज़ बिल्ड कर रहा है। अच्छा, कोई फुल स्टैक ऐप बनाते हैं तो उसमें ये सब भी करना होता है, लाइक गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स, ये सब भी देखने पड़ते हैं। यू हैव टू क्रिएट लाइक अ स्पेशल फाइल और सेट ऑफ फाइल्स जो क्रॉलर्स को हेल्प करती हैं टू इंडेक्स योर फाइल। तो ये सब भी पता चला कि अच्छा ये सब भी होता है। क्योंकि हम तो मतलब ऐसे CRUD ऐप बनाते हैं कि डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया, बन गई हमारी ऐप। बट एंड सेकेंडली कि लाइक मे बी ट्राई टू बिल्ड एन ऐप जिसके एक्चुअल यूजर्स हों। मतलब अगर वो है एंड इफ यू हैव वन गुड ऐप इन योर रेज्यूमे, तो इसमें यूजर्स एंड पीपल आर एक्टिवली यूजिंग इट, दैट वन थिंग इज इनफ। ये आइडियाज मतलब आते कहाँ से हैं? जैसे मोस्टली जो लोग वेब वगैरह सीखते हैं, क्लोन बना रहे होते हैं। स्पॉटिफाई का क्लोन बना लिया, मे बी इंस्टाग्राम का क्लोन बनाया। हाँ जी। मैंने आपका रिज्यूमे देखा था, यू डिड वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। वो आइडिया कहाँ से आए? लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैंने जो एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, वो ई कॉमर्स क्लोन, लाइक मैं भी एडमिट करता हूँ, इट वाज अ क्लोन में भी। बट उसमें ये था कि मैंने लोगों के देखा कि वो क्या बना रहे हैं। लाइक वो बेसिक क्रड ऐप बना रहे हैं, मतलब ऐड टू कार्ट कर दिया, ऑर्डर कर दिया। तो मैंने कहा कि चलो मैं मतलब चलो बना लेते हैं। आई डिडंट वांट टू मेक इट इनिशियली, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसका आई विल मेक इट अ यूआई। लाइक मैंने पूरा घुस गया, मैंने अच्छे से बहुत कंपोनेंट लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करी, मैंने अच्छा सा यूआई बनाया उसका। एंड मैंने उसमें मतलब एक चीज़ मैंने मुझे फीचर आइडिया है कि अमेज़न ऐप, अमेज़न पे नहीं, मतलब आई डोंट नो कि उसमें ऐसा था कि इफ यू आर ब्राउजिंग एनोनिमसली एंड आपने कुछ आइटम्स ऐड टू कार्ट किए, बट एंड आफ्टर यू साइन इन, तो आइटम्स ऑटोमेटिकली आपके कार्ट में ऐड हो जाएंगे। हम्म। तो ये मैंने फीचर आई थिंक एक्स्ट्रा डेवलप किया था। लाइक मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मतलब एक ऐसे तो मतलब
क्योंकि ऑनेस्टली मुझे वैसे CRUD ऐप्स थोड़े बोरिंग लगे थे कि मेरा नहीं बनता बनाने का। अगर मैं सिर्फ CRUD ऐप बनाऊँगा, आई डोंट वांट टू बिल्ड इट, क्योंकि मैं कुछ सीखूँगा नहीं एंड बना के बस फालतू में सैटिस्फैक्शन आता है कि भाई मैंने बना लिया कुछ। एंड दूसरा जो एक मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ इन 1NG विद मी, सो उसने ही हैज़ बिल्ट एन ऐप, लाइक वो नोट्स प्रोवाइड करता है एंड लाइक कोर्सेज़, मटीरियल्स एंड सब प्रोवाइड करता है एंड इट्स लाइक बहुत यूज़र्स हैं, लाइक उसके मतलब एग्ज़ाम टाइम पे लाइक ही हैज़ लाइक 10,000 20,000 यूज़र्स अ मंथ। तो वही है, लाइक उससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर आप एक ऐसा ऐप बनाओगे जिसमें यूज़र्स भी हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना। आई विश आई वुड हैव डन दैट, और मे बी उसके साथ कोलैबोरेट करके बिल्ट इट। ओके, वही। ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। होपफुली आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा एंड जस्ट वांट टू थैंक यू कि भाई सेंटर पे आए, माय वो प्लेज़र। भी वीकेंड पे, क्योंकि आप वैसे ही बिजी रहते हो पाँचों दिन। आई जस्ट होप कि भाई आने वाले टाइम में और ग्रो करो और अच्छी चीज़ें अचीव करो एंड मे बी we'll have one more interview. थैंक यू। Okay. So that was the interview with Gurdat. Hopefully you got to learn something from it. And if you're a student who's looking to upskill yourself in the latest technologies and want to land your first tech job, then we here at Coding Blocks are there to help you out. If you like this video, let us know in the comments below. For more such videos, subscribe to our channel. And before you go, don't forget, coding matlab coding blocks.